हमें सबसे पहले बताएं कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई है। बच्चों ने देखा यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं। ऑलरेडी आउट इन द एयर व्हाट हैज हैपेंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जिसको वी वुड लाइक टू नेम एज अ मास मर्डर। ये लोग सुबह हम लोगों को घसीट रहे हैं। हम लोगों की क्या गलती है कि वो पढ़ रहे थे इसलिए मर गए, क्योंकि उनकी बच्चियां पढ़ रही थी तो वो मर गई। उनकी क्या गलती है सर? इवन नोबडी इज हियर टू लिसनिंग टू अस। नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਤਮ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਜਸਵਨੀ ਰਾਏ। ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਗਮ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाल ही ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव IAS स्टडी सर्कल ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰੱਸੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਵਿਨ ਜੋਲਵਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਨੀਆ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਯਾਦਵ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਓ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ CEO ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਰਾਓ IAS ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ SSPs ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। हम यहाँ पर 10 बाई 10 के फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पे हम 25-25 हजार रुपए पे करते हैं, 2.5 लाख वन टाइम में पे करते हैं। सर हम सारे यहाँ पर मिडिल क्लास है, सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी तक डिमांड नहीं कर सकते। सर जिन 2 छात्राओं की कल मौत हुई है, मर्डर हुआ है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से। सर मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ। मैंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुना था, आज देख लिया। ये लोग सुबह हम लोगों को घसीट रहे हैं। हम लोगों की क्या गलती है कि वो पढ़ रहे थे इसलिए मर गए, क्योंकि उनकी बच्चियां पढ़ रही थी तो वो मर गई। उनकी क्या गलती है सर? इवन nobody is here to listening to us। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है। प्लीज एटलीस्ट टॉक टू अस। सर हम लोगों की डिमांड है कि सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बंद हो जाए। जितनी भी यहाँ 99% सर बेसमेंट लाइब्रेरी है। जितना भी इन्होंने कोचिंग माफिया बना रखा है, ये सब चीजें खत्म करें। एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करें सर। यही हुआ है कि आई वुड से कि एक एस्पिरेंट की ही डेथ नहीं हुई है, एस्पिरेंट्स की ही डेथ नहीं हुई है। विद दोज एस्पिरेंट्स आई थिंक समवेयर इवन आवर फेथ हैज़ डाइड, आवर फेथ इन द सिस्टम हैज़ डाइड, आवर फेथ इन द मेंटर्स जिनको हम हमारे टीचर्स मानते हैं और जिनके पास हम इतने भरोसे से आते हैं। समवेयर आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बिन डिसमेंटल्ड। कल कोई भी हो सकता है। तो इनके इंसिडेंट से पहले 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रिक शॉक से। वो भी मेंस लिख रहे थे, ये भी मेंस लिख रहे थे। तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये वजीर बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में। आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे। जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है। इसका कोई समाधान नहीं होगा जब तक MCD से। तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझो, इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो क्या बेनिफिट है हमारे यहाँ पे। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है, जिसके चलते आज राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से बेसमेंट में पानी भरने से एक प्रसिद्ध कोचिंग क्लासेस में वहां पर कम से कम 2 बच्चियों की जान चली गई है, ये खबर सामने आ रही है। वहां पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के और अन्य लोग उन लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की किस प्रकार से हत्या हो गई जब वो इलेक्ट्रिक्यूट हो गए थे पटेल नगर में। इसके अलावा सदर बाजार में भी एक व्यक्ति की जान चली गई शॉक लगने से, क्योंकि वहां पर पानी का जमाव था और वहां पर बिजली की तारें जो हैं वो लटक रही थी और उसमें उनको शॉक लग गया। इस प्रकार से कई मौतें हुई हैं। क्या दिल्ली वासियों की जान की कोई कीमत नहीं है? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की पूरी प्राथमिकता केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, विज्ञापन दो और केवल दोषारोपण करो। और इसके चलते आज दिल्ली की जो स्थिति बन चुकी है कि हर जगह पानी जम जाता है, भराव हो जाता है, हर जगह इस प्रकार की अव्यवस्था फैल जाती है और ये जानलेवा बन चुकी है। इसके लिए आज आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। इनकी प्राथमिकता अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से बचाने के लिए है, पर जो आज दिल्ली की जनता जिस प्रकार से उनकी जान पर आ बनी है, उसके लिए कोई चिंता नहीं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाली अभी तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह से जल भराव के कारण बेसमेंट में पानी भरता है और पिछले 5 दिनों में अब तक 5 मौतें इस तरह से हो चुकी हैं, जो बरसात में कभी इलेक्ट्रिक का शॉक लगने से, करंट लगने से, कभी बेसमेंट में करंट लगने से। और इस तरह से बच्चे जो देश के कोने कोने से पढ़ने आए हैं, किस तरह से दिल दहला देने वाली वो फोटो और वीडियो है जो उनके मारे जाने के सामने दिख रही है। और ये नमूना क्या है? ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लूट-कूट और करप्शन का नमूना है। किस तरह से दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथियों ने, चाहे आतिशी जी हों, चाहे बाकी मंत्री हों, चाहे कॉरपोरेशन हो, किस तरह नालों की सफाई का सारा पैसा खा गए, लूटकर दिल्ली को खा गए। 1 घंटा अगर बरसात होती है, 10 मिनट भी अगर बरसात होती है तो दिल्ली भर जाती है, लोगों की बेसमेंट भर जाती है, नंगी तारों से लोगों को करंट लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और अभी आतिशी कह रही है मैं इंक्वायरी करा रही हूँ। इंक्वायरी तो अरविंद केजरीवाल जी की और मंत्रियों की कराइए, जो लूट कर खा गए दिल्ली को। कहाँ गया वो सारा पैसा जो दिल्ली के नालों की सफाई करने का था? अब तो दिल्ली सरकार के साथ कॉरपोरेशन भी आपकी है, बहाने भी नहीं बचे अब तो आपके पास। और अब कहते हो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया इंक्वायरी करो। आतिशी जी इंक्वायरी नहीं, तुम इस कत्लेआम के जिम्मेवार हो। ये किसी की मौत ट्रेजेडी से हुई जो, उसकी जिम्मेवार आप हो। ये कत्ल है और ये मर्डर है और ये आपकी करप्शन के कारण हुआ मर्डर है। वैसे ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਆਈਐਸ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਖਰ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बस प्रशासन एक जांच कमेटी बना के ते मुआवजा तय करके जिम्मेवारी मुक्त हो जाता है। कुछ समय बाद इस खबर तो मीडिया वाले भी होर खबरां वल मुंह कर लैण। किसी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा कि इन्हां बच्चिआं नूं इंसाफ मिलेगा जां नहीं।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੀਂਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।